Hello everyone, myself Shanwaz Manmir, Faculty of Diploma Department, Suresh Gyan Vihar University. So today our next lecture, in this lecture we will discuss about the brief introduction of chain, tape and what are different types of maps are used in chain survey or in survey, and we will also discuss about chain survey. And in this video lecture we will discuss about the main vision of surveying like plane survey and geodetic survey. So one by one we will discuss in this video. The basic definition of the chain survey is defined as surveying is the art of the determining relative position of objects on the surface of the earth by taking the measurement. In the horizontal and vertical plane, the measurements are drawn to convert reduced size of paper known as maps or plan. It is the part of survey. Thus, in other words, we can say that it is the part of survey which deals the measurement in vertical plane is known as leveling. In the on the paper which these measurements are drawn are called section and elevation. So the basic surveying and leveling are considered to be different types of operation, but in the wider sense, a wider report, the term survey includes leveling. So the main object of the surveying is to obtain map or a plane of the area surveyed. The art of the surveying and maps making has been practiced that very ancient time. So this is the basic definition of the surveying, and the basic purpose of the surveyings are to determine the relative position and size of natural and artificial features like mountains, hills, lakes, etc. to find relative height of various points of the earth, and to prepare an engineering map showing detail like highway, railway, canals, and it is also prepared like military map showing strategic points important for a defense country. सो द बेसिक पर्पज़, जो इसका बेसिक पर्पज़ है उसमें हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, साइज़ ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जो भी फ्यूचर्स होते हैं जैसे माउंटेन्स हो गया, हिल्स हो गया या लेक्स हो गया, हम उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए हम एक सर्वेइंग करते हैं। फिर उसके बाद जो बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, हम उनको फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद जो भी हम सर्वे करते हैं उसका एक मैप बनाते हैं, उसमें इंजीनियरिंग डिटेल्स को ऐड किया जाता है। जैसे हाईवे का अगर कोई हम सर्वे करते हैं तो हाईवे डिटेल्स ऐड की जाती है। रेलवेज़ का अगर सर्वे करेंगे तो रेलवेज़ डिटेल होगी, कितना एलिवेशन है, कितना सुपर एलिवेशन है, कितना टर्न आउट है, वो सब हम इसमें यूज़ करते हैं। बात करें कैनाल्स की, तो कैनाल्स का भी एक टोपोग्राफिकल मैप बन रहा है जिसमें शो किया जाता है किस डायरेक्शन में है, कितना हमें उस पर कटिंग करके उसको डीप करना है। तो इस टाइप्स की जो भी डिटेल्स हैं वो एक इंजीनियरिंग मैप पे हम शो करते हैं बना के। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि मिलिट्री मैप को शो करते हैं, जैसे कि कहीं भी अपने कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज वॉल हैं, जहाँ जहाँ डिफेंस सेक्टर है वहाँ पे हम शो करते हैं। तो और ये बताते हैं कि ये एक मिलिट्री मैप है, ये सरफेस इंडिया की है, या फिर ये हमारे ऑक्यूपेशन में है, जो भी है वो एक मिलिट्री के हिसाब से सर्वे किया जाता है। तो ये बेसिक पर्पस है सर्वे का जो कि हम सर्वे करते हैं। देन अगर हम उसके बाद बात करें इसकी मेन डिवीज़न सर्वे की, तो उसमें जो है वो सर्वे को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। जो कि फर्स्ट डिवीज़न हमारा है वो है प्लेन टेबल सर्वे, और उसके बाद अपना जो सेकंड डिवीज़न है उसको हम जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। सो बेसिकली
जो हमारा प्लेन सर्वे है, प्लेन सर्वे को हम डिफाइन करते हैं कि द अर्थ इज़ लाइक समवट elliptical in nature, but it is generally assumed to be a spherical. Therefore, a line joining any 2 points on the surface of the earth is an arc, like a circle, and not to straight line. But the survey line plane is projection upon a horizontal plane, and it is construction all linear and angular measurement drawn must be horizontal. So जो हमारा प्लेन सर्वे है बेसिकली वो हम एक प्लेन रीजन के लिए करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि अर्थ की कर्वेचर को इग्नोर किया जाता है या फिर इलिप्टिकल सरफेस में होती है। इसमें बहुत सारे हम एंगुलर एंड हॉरिजॉन्टल, जनरली जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे होता है वो हम इसको 260 किलोमीटर की रेंज के अंदर करते हैं और प्लेन रीजन के लिए यूज़ किया जाता है। नाम से ही पता चल जाता है कि प्लेन सर्वे बेसिकली स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होता है और विद इन 260 किलोमीटर के अंदर जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं वो प्लेन सर्वे में आती है। देन उसके बाद आ जाता है आपका जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे जो होता है उसको कुछ डिफाइन किया जाता है, व्हेन द लाइक सर्वे एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया or the degree of accuracy is required is great, the curvature of earth cannot be ignored. Those survey where the curvature of earth is taken into account are called geodetic survey. They are also known as trigonometrical survey, as they like involve the knowledge of the trigonometric during different equation. So the geodetic survey is like generally adopted to locate the widely distance control points. Survey to be conducted between these points, it is the require the use of very redefined instrument as well as method of observation and adjustment. So basically जो हमारा जियोडेटिक सर्वे है सबसे पहले वो लार्ज एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा एरिया 260 किलोमीटर से ज़्यादा होता है उसको उस एरिया को हम जियोडेटिक सर्वे में क्लासीफाई करते हैं। देन इसके बाद इसका जो एडजस्टमेंट है और जो मेज़रमेंट है वो एकदम उसमें ग्रेट एक्यूरेसी हमें चाहिए। तो जियोडेटिक सर्वे बेसिकली 260 किलोमीटर के अबोव का एरिया का जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं उसको जियोडेटिक सर्वे कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज़ मैप्स एंड प्लान्स। ये तो एक बेसिक टर्म है, आपने नाम भी सुना होगा, मैप्स और प्लान। जैसे हमारा इंडिया का मैप्स है उसमें मिलिट्री मैप है, ओशन मैप है, सी मैप है, सब टाइप्स के जो भी मैप्स हैं वो मैप्स में आते हैं। प्लान्स हो गया कि किसी भी बिल्डिंग का प्लान, किसी भी अपार्टमेंट का प्लान, किसी भी स्ट्रक्चर का प्लान, उनको हम कैसे ड्रा करते हैं, उनका कैसे सर्वे किया जाता है, तो हम उसको मैप्स एंड प्लान बोलते हैं। सो मैप, व्हेन अ लार्जर एरिया इज़ ड्रॉन टू द स्केल ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड मैप। मीन्स मैप्स जो है वो कोई भी बड़े एरिया को जो हम किसी भी पेपर पर ड्रा करते हैं, जिसमें हम ये उस पर शो करें कि ये इसके अंदर इतने रीजन्स हैं, इतनी स्टेट्स हैं और उसकी ये कैपिटल्स हैं, या फिर कोई और बड़ी बाउंड्री वगैरह शो करें तो हम उसको मैप्स बोलते हैं। प्लान वो हो गया कि कोई भी स्मॉल एरिया को हम किसी भी पेपर पर ड्रा करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। अब स्केल की बात करें तो इसको हम सेंटीमीटर और किलोमीटर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसका डिस्टेंस ले सकते हैं। और वहीं प्लान जो है उसको सेंटीमीटर और मीटर में हम इसको ड्रा कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपके बता दूं, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मैप की एग्जांपल है वो जैसे नेशंस के मैप हो गए, टाउन्स के हो गए, सिटीज़ के हो गए, वो सब आपका मैप में आता है। और बात करें प्लान की तो प्लान किसी भी बिल्डिंग का प्लान, ड्राइंग हो गया, उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने एलिवेशंस हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब किस में आता है, प्लान्स में। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बात करें मैप्स की, जैसे हमारे खुद के कंट्री इंडिया का मैप है, उसमें बहुत सारी कैपिटलों को ड्रा किया हुआ है, फिर उनकी बाउंड्री को ड्रा किया हुआ है, फिर उनके एरिया को बताया हुआ है,
फिर उसमें ये भी एक पर्टिकुलर बताया हुआ है कि इस स्टेट के अंदर इतना एरिया है, ये सबसे छोटी स्टेट है, ये सबसे बड़ी है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, नॉर्थ रीजन में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो वो सब जो भी डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ उनमें रोड का नेटवर्क है, कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब मैप पे हम ड्रा कर सकते हैं। और उस दूसरी तरफ कोई भी बिल्डिंग्स हम जब बनाते हैं या कोई भी छोटे एरिया को हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, किसी सिटी को, किसी टाउन को मेज़रमेंट करें या किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का हमें कुछ भी बनाना हो, तो उसका हमें प्लान बनाना हो तो हम उसको हम एक पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। तो जैसे एक अपार्टमेंट की बात करें तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बीम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, वही स्ट्रक्चर हमारे मेन सिटी से कितना दूर है, कितने एलिवेशन पे है, कितने डिस्टेंस पे है। और जो भी बिल्डिंग के अंदर हम यूज़ करें, कुछ भी मटेरियल यूज़ करें, कुछ भी किसी किस्म का कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ करें तो हम उसको हम आराम से प्लान पे ड्रा कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ मैप एंड प्लान का? मैप क्या है कि किसी भी नेशन को ड्रा करता है, उसकी बाउंड्री को ड्रा करता है, लाइक सिटी हो गई या स्टेट्स वगैरह हो गया। और प्लान वो हो गया कि किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी प्लॉट्स को हम जब मेज़रमेंट करें तो उसकी जो भी ड्राइंग बनती है, उस ड्राइंग को हम आराम से इस पे प्लान में ड्रा कर सकते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड प्लान। देन टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप्स में जियोग्राफिकल मैप है, टोपोग्राफिकल मैप है, कैडेस्ट्रल मैप है एंड सिटी मैप है। टोपोग्राफिकल जो मैप है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री सच एज लेक्स, रिवर्स, हिल, वुड एंड नालाज और आल्सो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट सच एज कैनाल, रेलवे, रोड, टाउन्स एंड विलेज। जो भी टोपोग्राफिकल मैप है उसमें हम कैनाल्स, रिवर, रोड, टाउन्स को और या विलेज को, जो भी हम नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको ड्रा करें तो वो किस में आता है? टोपोग्राफिकल मैप में। देन उसके बाद आपका कैडेस्ट्रल मैप है। दिस इज़ यूजुअली प्लॉटेड टू ए लाइक लार्जर स्केल देन टोपोग्राफिकल। एडिशन डिटेल्स सच एज बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड। जो हमारा कैडेस्ट्रल मैप है उसमें हम बाउंड्रीज ऑफ फील्ड को मेजरमेंट करते हैं, अपने घरों को मेजरमेंट करते हैं, लाइक उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो कैडेस्ट्रल मैप हाथ में आता है। देन उसके बाद सिटी मैप जो है वो एक किसी भी सिटी को शो करता है, उसकी बाउंड्रीज़ को शो करता है। और जो आपका जियोग्राफिकल मैप है उसमें जैसे ओशंस हो गया, रिवर्स वगैरह हो गया, उन सब चीज़ों को जो भी एक पेपर पे ड्रा किया जाता है तो हम उसको जियोग्राफिकल मैप कहते हैं।